Yes. So moles equals to number divided by Avogadro नंबर, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसमें तुमको अगर नंबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो दिस विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो तुमको अगर मास निकालना होगा तो देखो, अगर मास निकालना होगा, ऐसा वेट निकालना होगा तो मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा। अगर मैं यहीं पर इन ब्रीफ लिख दूं, वेट और मास इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा। तो ये दो तुम्हारे पास मेरे पास आ गए, ऐसा। इसी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे कल। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इन ब्रीफ, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इन ब्रीफ। Shall I proceed? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ऐसा है। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? यस, विजिबल। रेवा, अनलॉग इन करके एक बार फिर से लॉग इन करो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, राइट डाउन द प्रॉब्लम प्लीज। इसी पर बेस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। फाइंड आउट नंबर ऑफ moles present in find out number of moles present in 1.5 into 10 raised to power 22 molecules of 22 molecules of H2SO4. Simple formula based problem. So whenever number is asking, that is moles is asking, so it is number of
molecules divided by Avogadro number, which is 1.5 into 10 raised to power 22 divided by 6.02 into 10 raised to power 23. Yes, Srikant. So this is approximately, अगर मैंने कट किया तो 4 हो गया. So this is 0.25 into 10 raised to power minus 1. It means that it will be 2.5 into 10 raised to power minus 2 moles. Okay. Yes. 2.249 is more accurate. मेरा approximated answer. Mine one is approximated one. Sir, please explain again this last. हाँ, one that is mole equals to number of molecules divided by Avogadro number. Number. Number of molecules are 1.5 into 10 raised to power 22. Avogadro number is 6.02 into 10 raised to power 23. 22 पावर कट गया, 22 पावर कट गया, नीचे बचा 10, become 10 raised to power minus 1. And 1.5 and 6 को कैंसिल किया, become 15 multiplied by 4 becomes 60. That is 1 by 4 approximated answer. Okay, done. है ना? Yes. Now next one. Find out mass of find out mass of 3.01 into 10 raised to power 21 molecules of Na2 SO4 dot 10H2O. What is given molecule? So first calculate number of moles. ट्राई करो फास्ट. So this is correlation between mass and a number. छोटे छोटे बिल्कुल एग्जाम्पल्स, हाँ ऐसे ही आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, इवन इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. सो गिवन क्या है? गिवन इज नंबर ऑफ molecules. Now how many molecules? That is 3.01 into 10 raised to power 21. So by formula, moles equals to
mass divided by, sorry, number divided by Avogadro number. It will be number of molecules. कितना आ गया रिटर्न? डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर. बोल रेवा कितना आया? 3.01 into 10 raised to power 21. This is 6.01 into 10 raised to power 23. अरे वाह, बहुत सारे लोगों के आंसर आने लग गए. तो नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड अभिदा, श्रीकांत, रेवा, वाव, वेदांग, ठीक है. सो दिस इज एग्जैक्टली हाफ है कट करके के. हाफ का मतलब हो गया 0.5 एंड 0.5 into 10 raised to power -2. तो फाइनल आंसर number of moles equals to half into 10 raised to power -2 moles. This is one. Assume करो mass of 3.01 into 10 raised to power 21 molecules is x gram. Okay. So moles will be mass divided by molecular mass. So this is x divided by, what is the molar mass of Na2CO, Na2SO4.10H2O? What is the molecular mass, please? What is the molecular mass? Molecular mass बोल. बोलो रोनित, मॉलिक्यूलर मास कितना आया? रितायन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? क्या हो गया? Na2SO4 डॉट 10H2O. सोडियम 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 SO4 98. H2SO4 का 98 होता है, SO4 का इज 96. 10 मल्टीप्लाइड बाई 18 वाटर का बिकम ऐसा. सो दिस इज 46, 96, 180. So this is 12. Sorry, this is, हाँ सही है. $322 सही है क्या? 322, yes, very good. So this is second. Both are number of moles. So from first and second, you will get mole mass divided by molar mass, number divided by Avogadro number. इसको 0.5 की जगह 5 लिख दिया. 5 into 10 raised to power -3.
So you will get x equals to 5 multiplied by 322 multiplied by 10 raised to power 3. Sorry. So this become 3 decimal digit हो गया. वाह, सब लोग का बहुत एक्यूरेटली आया हुआ है. पहले ये बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? श्रावणी, स्वराली, त्रिशा, तनिष्का, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड. एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज? देखो मैं 10 बार बोलोगे मैं 10 बार बताऊंगा. ओके? नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है. तुम लोग को बिलीव नहीं हो तो दूसरे क्लासेस का एक बार उठा करके देखो. बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं. दे आर जस्ट, वो क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को 10 टाइम्स बोल बोल के तुमको याद करवाएंगे. बट माई स्टाइल इज टोटली डिफरेंट. Instead of remembering all these things, we will solve 10 numericals and will write 10 times, will automatically remembered one. जितना लिख लिख करके करने का. देखो बेस्ट स्टाइल ऑफ स्टडी इज राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन. हाँ ठीक है ना. 6.02, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23. नॉट एन इशू. और बोलो, किसी का कोई डाउट प्लीज? नहीं है ना? सिद्धि, अब नहीं है. ठीक, डन. चलो, अभी भी मैं नंबर वगैरह ही, नंबर से ही we will calculate from number, in terms of number, relation between mass and number, relation between mass and number, relation between mass and number. फिर से हम लोग लिखते हैं. लिखो. Now next problem is saying if 1.5 into 10 raised to power 24 molecules are removed, are removed from, are removed from are removed from 150 gram of CO2. Then find out remaining mass of CO2. Please try it. उसके बाद मैं सॉल्व करके देता हूं. ओके? देखो थियरी तो तुम्हारा 45 मिनट में पूरा खत्म हो गया होता, पूरा पूरा थियरी, इवन इन हाफ एन आवर. But it does not make any sense. Does not make any sense. Please
मैं सॉल्व करूं क्या? शैल आई सॉल्व इट? या अभी सब लोग ट्राई कर रहे हैं? आई थिंक ट्राई कर रहे हैं. So I'm going to solve actually. ओके सो लेट अस स्टार्ट. किसी ने सॉल्व भी किया है? यस, रिमेनिंग मास ऑफ श्रीकांत. वेरी गुड श्रीकांत. 40 ग्राम बोले बचा होगा बस. लेट अस सी. ओके, व्हाट इज गिवन एक्चुअली? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना. So correlate with moles. So moles will be 1.5 into 10 raised to power 24 divided by 6.02 into 10 raised to power 23. So this is 1 by 4 into ऊपर 10 बच गया. So this is 2.5 moles. या इतना ही रहने दो, हो सकता है कैंसल आउट हो रहा हो. So this is number of moles. बट ये क्या है? रिमूव्ड नंबर ऑफ मोल्स. अभी मैंने पढ़ा था जस्ट बिगनिंग. इन द बिगनिंग व्हाट इज मास? मास इज मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. नाउ दिस इज टर्न फॉर अप्लाई फॉर्मूला. रिमूव्ड मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रिमूव्ड मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास. तो रिमूव्ड मोल इज 10 by 4. मोलर मास ऑफ CO2 इज 44. देख लो, ये आ गया ना. दिस इज 11. तो दिस बिकम 110 ग्राम. इतना क्या किया है तुमने? रिमूव्ड. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग मास? टोटल मास माइनस रिमूव्ड वन. Remaining one is, now total mass is 150 minus 110, 110.
So 40 gram will be remaining. 40 grams will be remaining. Note down, please. ठीक है ना? This is approximated answer. This is approximated. This is approximated answer. Ritayan, Abida, yes. Siddhi, Samruddhi, Samruddhi, yes. Tanish, Samruddhi, ठीक है, चलो. Now next one, please. Okay. Similar problem. छोटे छोटे प्रॉब्लम. Find out number of molecules present in number of molecules present in 60 gram of ethane, please. Solve. Now this time mass is given. इसके पहले नंबर देता था, मास पूछता था. इसके बाद अब मास दिया है, नंबर पूछ रहा है. Simple problem. What is given? Mass. Calculate number of moles. Mass given 60 gram. So moles will be by formula mass divided by मोलर मास. मास कितना है? 60. मोलर मास कितना है? 30. Okay. So this is 2 moles. This is first one. Assume करो n equals to number of molecules. So moles become number divided by Avogadro number. So from first and second, देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. थ्योरी पोर्शन अगर मैं बोलूं तो विद इन 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग करेक्ट आंसर. रितायन, श्रीकांत, ईशान, अबिदा, रेवा, प्रांजलि, आर्या, all are correct. Shravani, Akanksha, yes, very good. Amit,
अमित चौगुले। मैं किसी के अगर मम्मी पापा का नाम लेता हूं तो भाई वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो ऊपर जो नेमिंग दिख रहा है ना, मैं वो वाला प्रोनाउंस करता हूँ इन केस। So 2 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23. So 12 point, very good, 12.04 into 10 raised to power 23. वाह, सब लोगों ने करेक्ट लिखा है, सभी लोगों ने करेक्ट लिखा है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। दूसरी कोचिंग वाले ऐसे थोड़े मुझसे आगे निकल गए, मुझसे पीछे स्टार्ट करके। You will check how many numericals they are solving. 10% of mine, 10% मैंने बोला, 10%, only Sir, 10%। नोट करो please फास्ट। show the backs. यस, नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। So number equals to moles multiplied by Avogadro number, and moles equals to mass divided by molar mass, पुट कर दो बस। देखो, नंबर इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। ओके, घेतला का? यस हो। मैं भी धीरे धीरे मराठी सीख रहा हूँ। नाउ तुमसे बोल रहा है प्रॉब्लम में ऐसे ही नंबर एंड मास का। प्लीज फाइंड आउट नंबर ऑफ molecules present in find out number of molecules present in 12.2 gram of benzoic acid। ओ, benzoic acid का फॉर्मूला नहीं आया तो गया, that we have already done। Manas, Manas, is there any problem, please? This is benzoic acid का फॉर्मूला, कार्बन 7, हाइड्रोजन 6, O2। try it fast। वेदांग, लास्ट स्लाइड देखना है। यस, चलो 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 फास्ट। फिर से क्या कर, अब हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। मैं वन बाय वन स्लोली जा रहा हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, व्हाट इज मोल, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
into Avogadro number. Now put the value 12.2 divided by Srikant. Very good. Very good. Very good. So this is 122. This is 0.1. ऐसे ही रहने देते भाई. डिफिकल्ट जा रहा है क्या? इज इट डिफिकल्ट प्लीज? See, each and every problem I'm solving. Don't worry. Yeah? So this much molecule is present. तो धीरे 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 थोड़ा सा स्लाइटली मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ रहा होगा. रेवती, वेरी गुड. देखो तुमको प्रॉब्लम आता कैसे है. ओके. नो प्रॉब्लम प्लीज. What kind of problem is asked in the exam? तुमसे बोलेगा अब स्लाइटली. Sir, please show हाँ the बोलो. last slide. Please show the last slide. Sir, done. हो गया. Yes, sir. यस. क्या बोला है? फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन in 1.8 gram of glucose. ठीक है ना. Again mass is given. Start with and asking number. Asking number. So first calculate number of moles. किसी भी कोचिंग में न्यूमेरिकल नहीं कराया जा रहा है. तुम लोग को बिलीव नहीं हो तो अपने फ्रेंड्स को नोटबुक ले करके देखो. थ्योरी पार्ट हो रहा है. सिर्फ थ्योरी पार्ट. So solutions moles equals to mass divided by molecular mass. Mass is 1.8. What is the formula of glucose? C6H12O6. 1206. 180 आया.
Very good. So this is 0.01 moles. Now never assume n equals to number of atoms directly. If you are directly assuming number of atoms, then it become wrong. Always assume number of molecules, number of ions, like this one. So n is number of molecules. हम लोग थोड़ा स्लाइटली धीरे धीरे करते हुए जा रहे हैं. Number of molecules, not number of atoms. It will be wrong because one molecule itself containing 6 atoms of carbon. So from first and second, you will get n. n क्या है? मैंने बोला था always assume number of molecules equals to 0.01 into Avogadro number. इसके पहले किया था हम लोगों ने. So this becomes 6.02 into 10 raised to power 23 से 2 पावर कम हो गया तो become 21. 0.01 से multiply. Now this is total number of molecules. Now one molecule of C6H12O6 is containing बोलो 6 atoms of carbon, है ना? 12 atoms hydrogen, 6 atoms of oxygen. एक मॉलिक्यूल में है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? उतने से मल्टीप्लाई. might be possible. हो गया? ये तो क्या हो गया? सिर्फ एक मॉलिक्यूल में. सो टोटल number of carbon atoms will be 6 multiplied by n. Six multiplied by 6.02 into 10 raised to power 21. Again, total number of hydrogen atoms. Twelve into n. Avogadro number multiplied by number of moles already calculated.
ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? अगर तुमको टोटल एटम्स इन ग्लूकोज देखना है तो क्या हो जाता? दिस इज सेपरेट सेपरेट सेपरेट। टोटल एटम्स, अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 6 किसके? कार्बन 6, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, बिकम 24। इतने। भाई ज्यादा टफ हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक इट इज टफ वन। हाँ रेवा बिल्कुल सही है। इज इट टफ वन? मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि टफ होगा। एंड इफ इट इज, if you are facing any problem, please ask me immediately. You ask me. See, number of students कम होते जा रहे हैं ना, 37 is right now। 7 लोगों ने अभी तक, स्टार्ट से 7 लोग जा चुके। आई डोंट नो, नेट का इतना इशू रहता है क्या? अभिदा, इट इज करेक्ट। पूरे जाऊंगा? Sir, हाँ, why we multiply 24 into 6.02 into 10 raised to 21 in total atom? हाँ, this is total atoms। Why? See, one molecule of glucose is containing how many atoms? 24। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, become 24। One molecule is containing 24 atoms। Okay, Okay, sir, got it. so total number of atoms will be number of atoms in one molecule multiplied by total molecules, and total molecules already you have calculated। बात ही नहीं मानता है, क्या होता जा रहा है? हाँ? हाँ, पूरे जाऊंगा। यस, ओके। चलो देखो, मेरे पास प्रॉब्लम आया। आई नो प्रॉब्लम्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबको डॉक्टर इंजीनियर भी बनना है, और डॉक्टर इंजीनियर ऐसे थियरी से नहीं बनते। इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, which of the following is having highest? Yes,
प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करने आ गया तो थ्योरी एनी टाइम सॉल्व कर सकता है. Which of the following is having highest number of atoms? First, कितना आ गया तुम्हारे पास? 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ब्रैकेट में दिया है 23, ब्रैकेट में इज एटॉमिक नंबर इज गिवन, एटॉमिक मास इज गिवन. Seven gram of lithium. Then 20 gram of carbon. So this time there is no requirement of calculating number of molecules because they are directly in atomic format. Fourth one, 24 gram of magnesium, atomic number suppose 25 दिया है. ट्राई करके देखो, सिंपल सा प्रॉब्लम आईआईटी ने दिया. अब इससे सिंपल प्रॉब्लम नहीं मिल सकता आईआईटी में. नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोल मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर. बस. मास इज गिवन, एटॉमिक मास इज गिवन इन ब्रैकेट. श्रीकांत का आ गया भाई थर्ड वन, बिल्कुल सही है. सिद्धि का भी आ गया, वेरी गुड. तो मैं तुम लोग को बिल्कुल प्रूफ करके दे देता. मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल, number divided by Avogadro number is mole, so number will be equals to mass divided by molar mass into Avogadro number. बस रख दो. 23 mass divided by molar mass multiplied by Avogadro number, सिर्फ और सिर्फ Na आ गया. यहाँ पे क्या आ गया? 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू Na है. तो 1 डिवाइडेड बाई 7 divided by 6. So this is 24 by 12 into Na. मत कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई करके. Na is common everywhere. हो गया. So this is 0.9 Na.
सो हाईएस्ट किसका आया? Highest is third. After that, second. के बाद first, fourth. Tell me if anyone is having doubt. Yes, no problem. Ritayan, is there any problem, please? Is there any problem? नहीं है। और भी प्रॉब्लम करना है? अब सोच लो, अगर मुझे प्रॉब्लम तुमको प्रॉब्लम मैं नहीं कराता तो विद इन 35 मिनट हम लोगों के पास सारा थियरी इसका खत्म हो जाएगा। ऐसा है। ओके, सो प्लीज स्लोली स्लोली मैंने प्रॉब्लम के लेवल को इंक्रीज किया। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स in 5 drop of water. ऑलरेडी किया हुआ है इसका एक पार्ट मोल निकालने में। मास ऑफ 1 ड्रॉप इज सपोज, कितना ले लूं? 0.6 ग्राम। Never calculate directly. Do not assume. Never assume number of electrons, number of atoms directly. First calculate number of molecules, then calculate in one number, one molecule में कितना है। तुम सोचो, मेरे पास क्रैश कोर्स में आते हैं, दूसरे दूसरे कोचिंग में बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं, एकदम से बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं। So Yes. first number of moles in 0.6 ग्रॅम हे काढायचं ना? हाँ, ये वाला ओके। पहले मास First. निकालो। मास ऑफ water is 0.6 multiplied by 5 drop, so you are getting 3 gram. So calculate moles. 3 divided by 18. Atomic mass of oxygen 16 plus 2 is 18. Number of molecules will be moles multiplied by Avogadro number. ऐसा number of molecules मिल गया।
अब देखो, 1 molecule of H2O is containing electrons, protons, neutrons. 2 electron present in 2 hydrogen plus 8 is 10. Number of protons हाइड्रोजन में नहीं होते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स होगा, सॉरी 2 protons plus 8, 0 neutron, or in hydrogen, 8 neutron in oxygen. This is in 1 molecule. So n molecules में कितने होंगे? Note down please. Note down please. So this is in 1 molecule. So total number of electrons ये कितने हो जाएंगे? 10 multiplied by n. What is n? N you have already calculated. 3 by 8, not 8, 18. 6.02 into 10 raised to power 23. Total number of protons again 10 multiplied by n, क्योंकि एक में 10 मॉलिक्यूल्स हैं. This is number of molecules multiplied by 10. Total number of neutrons 8 into n. So this is 8 multiplied by 3 by 18, 6.02 into 10 raised to power 23. फाइनल आंसर बोलो सब लोग. यस, इलेक्ट्रॉन आ गया 10 रेज़ टू पावर 24. प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स 8 इंटू. इतना कैसे आएगा? ईशान 28 से मल्टीप्लाई. श्रीकांत थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है.
अगर मैं इसको इससे ले लूं तो ओके हो सकता था, माइट बी पॉसिबल। 3333 कट गया, अप्रोक्सीमेटेड आंसर। हाँ, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड। 18 से कट गया तो नॉट एक्यूरेट, अप्रोक्सीमेटेड। This is approximated answer. Okay. तो मैंने ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, आईआईटी, नीट, सीईटी, बोर्ड, सब दे 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 करके दिया। ठीक है ना? भाई दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड कि जो लोग का बाय द वे इंटरनेट की वजह से इशू आ जा रहा है, फिर से वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। अटेंड इन सेंस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने यही देखा, जो एक बार लीव कर जा रहा है वो लीव कर जा रहा है ग्रुप से। डेट आई डोंट नो, आंसर कैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग जाओ। ठीक है ना? नॉर्मली एग्जाम में अप्रोक्सीमेट करने से आंसर आता है। क्यों? अप्रोक्सीमेटेड आंसर जो तुमको मिलेगा, सपोज अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज 2.3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, आंसर इज गिवन एज 2.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो तुमको आइडिया लग जाएगा 2.1 और 2.3, लाइक दिस वन। ठीक है ना? कैलकुलेशन ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन, बट योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटेड, बट गिवन आंसर विल बी एक्यूरेट। तो तुमको जज करना रहेगा। ओके? तो ठीक है भाई, यहाँ के लिए टुडेज लेक्चर आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। एंड प्लीज जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा हम लोग इसको देखो, वीडियोस कंटिन्यूअस। ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच। डोंट अफ्रेड ऑफ न्यूमेरिकल्स, do not afraid of numericals, do not afraid of numericals. Yes, bye, 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 thank you.